الیکشن پر اپوزیشن کا واویلا چور بچائے شور کے مترادف ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بتا دیا. کہتے ہیں عوام کے سامنے اپوزیشن کے دوغلے چہرے بے نقاب ہو چکے. شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس احتساب عدالت میں سماعت آج ہوگی. شہباز شریف، حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزموں کو 8 روزہ جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا جائے گا. حافظ قرآن اور درس نظامی اسکالر کے لیے وظیفہ مقرر کرنا چاہیے. فیملی عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. پارلیمنٹ کو حافظ قرآن اور درس نظامی اسکالر کو وظیفہ دینے کے لیے قانون سازی کی ہدایت. پھر دھند کے ڈیرے، ٹریفک سست روی کا شکار، موٹر وے بھی کئی مقامات سے بند. ترجمان موٹر وے کی شہریوں سے غیر ضروری سفر سے گریز کی اپیل. حملے نہ رک سکے، صوبے میں مزید 412 نئے کیسز رپورٹ. شہر میں 128 افراد میں وائرس کی تصدیق. لاہور میں موذی وائرس مزید 9 زندگیاں نگل گیا. عام کی نااہلی عوام کے لیے درد سر بن گئی. شہر کو کچرے سے پاک نہ کیا جا سکا. عرفہ کریم ٹاور کے باہر کوڑے کے ڈھیر، تعفن اٹھنے سے اہل علاقہ پریشان. حکام سے صفائی کا مطالبہ. شہر میں آوارہ کتوں کی بھرمار، شہری بن رہے ہیں شکار. بیدیا روڈ پر 10 سالہ بچے پر کتوں کا جان لیوا حملہ. بچے کا منہ اور ٹانگیں نوچ ڈالی. بچہ زخمی حالت میں اسپتال منتقل. لٹیرے بے قابو، چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں. باغبان پورہ میں دوائی لینے آنے والوں نے فارمیسی لوٹ لی. لیٹن روڈ پر دکان، ڈیفنس میں مکان میں چوری. فوٹیجز لاہور رنگ پر. حاضری کی فکر نہ ہی کام کی ٹینشن. واسا کے شالیمار ٹاؤن میں گھوست ملازمین کا انکشاف. کام کرنے والے ملازم فارغ، افسران کے چہیتے گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرنے لگے. گنگا بہنے لگی. غیر قانونی ہاؤسنگ کالونی اسکیم کی مرکزی کردار پر نوازشات. ڈی جی ایل ڈی اے نے بشرا نصیر کو کلین چٹ دے دی. ڈائریکٹر کچی آبادی لگا دیا. گروپ کی زیر صدارت کالجز کے ریجنل ڈائریکٹرز کا اجلاس. بہتر کارکردگی دکھانے والوں کی ترقیاں. پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا سپیریئر کو نمبر 1 بنانے کا عزم. سیکریٹری کی زیر صدارت سہ ماہی ریویو کمیٹی کا اجلاس. اکتوبر سے دسمبر 2020 کے آڈٹ پیراز کا جائزہ. ایڈیشنل سیکریٹری فائنانس مانیٹرنگ کی بریفنگ. میاواکی جنگلات اگانے کی تیاری. ڈی جی پی ایچ اے جواد احمد قریشی کی زیر صدارت اجلاس. میاواکی جنگلات کے افتتاح کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. لہدگی اسکیم، پی آئی اے کے 2000 ملازمین فارغ. تاحال واجبات کی ادائیگی نہ ہوئی. ملازمین کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے. واجبات نہ ملنے پر ملازمین پریشانی کے شکار. چیئرمین وابٹا سے ملاقات. وابٹا منصوبوں کی تعمیر میں چینی معاونت پر تبادلہ خیال. چینی سفیر کا کہنا ہے پن بجلی منصوبوں میں بھی معاونت جاری رکھیں گے. آر ٹی ٹی آئی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. چیف انفارمیشن کمشنر پنجاب محبوب قادر شاہ کا کہنا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن عوامی احتساب کی طاقت منوانے میں کامیاب ہو چکا. افریقہ کے خلاف T20 سیریز. عثمان قادر پروٹیز سے بھرنے کو بیتاب. کہتے ہیں تربیتی سیشن کے دوران خوب محنت کی. کوشش کریں گے T20 سیریز اپنے نام کریں. فار ویمن میں کشمیر سپورٹس فیسٹیول کے رنگ رنگ مقابلے. پنجاب بھر کے کالجز اور جامعات کی طالبات کی شرکت. 90 روز ٹیمز کے درمیان بیس بال کے میچز. خصوصی نیاب پاکستانی گلوکار ظفر اقبال نے اپنا نیا گانا لانچ کر دیا. لانچنگ تقریب میں صحافیوں اور شوبز شخصیات کی شرکت. خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس ہے. شہباز شریف، حمزہ شہباز کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا. نون لیگی رہنماؤں کے حمزہ شہباز کے حق میں نعرے. سیکیورٹی انتظامات سخت ہو گئے. ایم ایو کالج سے سول سیکریٹریٹ چوک تک راستے بند. گرد و نواح کے رہائشی اور دفاتر میں جانے کے لیے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. احتساب عدالت سے اہم خبر شامل کر رہے ہیں کہ شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. نون لیگی رہنماؤں کے حمزہ شہباز کے حق میں نعرے بازی کا سلسلہ جاری ہے. اگر ہم سیکیورٹی کی بات کریں تو سیکیورٹی کے انتظامات بھی سخت کیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے. ایم ایو کالج سے سول سیکریٹریٹ چوک تک راستے بند ہیں. گرد و نواح کے رہائشی اور دفاتر میں جانے کے لیے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. راستے بند ہونے کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار ہے اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز جو کہ پابند سلاسل ہیں، دونوں کو عدالت کے روبرو پیش کر دیا گیا ہے. کارکنان بھی وہاں پر پہنچے ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے اظہار یکجہتی کے لیے، اور کارکنان وہاں پر نعرے بازی کر رہے ہیں. نعرے بازی کا سلسلہ جاری ہے
और अगर सिक्योरिटी के हवाले से आपको अपडेट करें तो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, सड़कों को ब्लॉक किया गया है और जिसकी वजह से जो वहाँ के मकीन हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, उन्हें मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्क्रीन पर मनाजिर देख सकते हैं। इस वक्त कड़े सिक्योरिटी इंतजामात में साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को अदालत के इहाते में दाखिल किया जा रहा है। अतराफ में कारकुनान का जमे गफीर है जो कि नारेबाजी में मसरूफ़ है और इससे कबल भी समातों की बात की जाए तो तब भी कारकुनान की बड़ी तादाद ही हमें स्क्रीन पर नज़र आई है। नून लीगी कारकुनान जो कि अपने कायदीन के हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं, उनसे इजहार यकजहती के लिए इस मौके पर पहुंचे हैं। अतराफ में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। करीबी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ भी सिक्योरिटी सूरत हाल सख्त है, लोगों को वहाँ से गुजरने में बहुत सी मुश्किलात का सामना है। करीबी दफातर में भी आने वाले मुलाजमीन के लिए बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं और इसी के पेश नज़र कुछ देर इंतजार का कहा जा रहा है। बादज़ा जब रास्ते खोले जाएंगे तब ही मुलाजमीन की आमद का सिलसिला अपने दफातर में शुरू हो सकता है। और इस वक्त शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। यहाँ पर उनसे दलाइल का सिलसिला शुरू होगा। गुज़श्ता रोज़ की बात की जाए तो साबिक़ वज़ीर आला शहबाज शरीफ को अदालत के रूबरू पेश किया गया था। न्याय की जानिब से गवाह भी अदालत में पेश किया गया था और गवाह का बयान कलमबंद किया जा रहा था, जबकि न्याय प्रोसिक्यूटर और साबिक़ वज़ीर आला के कानूनी माहिर उनके दरमियान तलखलामी भी हुई थी और ये बताया जा रहा था कि तलखलामी ख़त्म हो गई थी, लेकिन किसी ऐसे नुक्ते पर बहस का आगाज़ हुआ था और उसके बाद उस मामले को ख़त्म किया गया और समात बाकायदा तौर पर एक तसलसल के साथ जारी रही। आज भी अहम समात होने जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस है और शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ ये रेफरेंस है। इस सिलसिले में दोनों अहम शख्सियात अदालत के रूबरू पेश हुई है। तफसीलात जानते हैं सीनियर रिपोर्टर इब्राहिम लकी से। इब्राहिम, बताइएगा, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है और कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान वहां पर पहुंचे हैं? इब्राहिम, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि वहां पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है और कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान वहां पर पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ की आज तारीख पेशी है। इस वक्त दोनों रहनुमा नायब अदालत में मौजूद हैं। आज उनकी पेशी के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। MA कॉलेज से सिविल सेक्रेटेरिएट चौक तक रास्तों को कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर बंद किया गया था। तमाम इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून के जो है कारकुन भारी तादाद में यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपने कायदीन से इज़हार यकजहती किया। जब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ जुडिशल कम्प्लेक्स लाए गए तो उस वक्त कारकुनों ने उनकी गाड़ी के गिर्द जमा हो गए और उन्होंने उनकी गाड़ी पर फूल जो है वो बरसाए और नाराबाजी की। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम देखने को मिले। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज मरियम औरंगजेब जो है वो भी अदालत में यहाँ पर मौजूद हैं, तारर मौजूद हैं, उज़मा ज़ाहिद बुखारी समेत दीगर मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। मरियम औरंगजेब ने मीडिया से टॉक करते हुए 2018 के सेनेट इंतखाबात में अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त के हवाले से हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर आज मदीना की रियासत होती तो आज इमरान खान जेल में होते। उन्होंने गवर्नर मोहम्मद सरवर को भी तनकीद का निशाना बनाया कि वो 2018 के इंतखाबात में कैसे सेनेटर बने। उन्होंने कहा कि अरकान की खरीदो फरोख्त करने के बाद एक वजीर को खैबर पख्तूनख्वा में वजीर कानून बनाया गया। 2.5 साल के करीब उनको अपनी पार्टी में इमरान खान ने रखा। उन्होंने कहा कि ये कैसी मदीना की रियासत है जहाँ पर अरकान की खरीदो फरोख्त होती रही, सेनेटर्स के वोट खरीदे गए और ताकि जो है वो अपनी हुकूमत को स्टेबल कर सके, हाउस में अपनी पोजीशन को बेहतर बना सके। उन्होंने कहा कि ये एक तहरीक इंसाफ ने यह खरीदो फरोख्त का आलमी रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि वो खरीदो फरोख्त करने के बाद अब उस वक्त ये वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं जब अदालत में ओपन बैलेट के हवाले से केस की समात है। उन्होंने कहा कि समात से एक रोज़ कबल ये वीडियो जारी करना जो है ये इन्फ्लुएंस करने के मुतरादिफ है
ताकि हुकूमत अपनी मंशा के मुताबिक फैसला ले सके। इस वाले से अता तारर ने भी जो है मुख्तलिफ जो है मामलात पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस वक्त शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में मौजूद हैं। वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमा उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं और जबकि मुस्लिम लीग नून के कारकुन बदस्तूर जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हैं और अपने कायदीन से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। यकजहती के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। इब्राहिम, लीगी रहनुमाओं के कानूनी माहिरीन बारे बताइए, ज़राए के मुताबिक क्या दलाइल दिए जा रहे हैं? जी, इस हवाले से जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर है वो इस हवाले से बेहतर बता सकते हैं। ताहम जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस की जो गुज़श्ता समाअत हुई हैं उनके मुताबिक जो है इस केस में नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो अपने जो शहादतें हैं, जो विटनेस हैं, उनको जो है वो अदालत के सामने पेश कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ की पेशी में के दौरान भी नैब प्रोसिक्यूटर और मुस्लिम लीग नून के वकला के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई मुख्तलिफ दलाइल के हवाले से। ताहम जो है इस वक्त तक की जो मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ पर एक देले की करप्शन साबित नहीं हो सकी, ना ही उनके किसी अकाउंट में किसी ऐसी मशकूक ट्रांजैक्शन जो है वो साबित हो सकी जिससे ये कहा जाए कि शहबाज शरीफ बराह रास्त या इनडायरेक्ट जो है इस किसी भी किस्म की करप्शन में जो है वो पाए जाते हैं। तब इस हवाले से किसी किस्म का बराह रास्त सबूत नैब प्रोसिक्यूटर के पास नहीं है और यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि अब तक किसी किस्म की करप्शन बराह रास्त या इनडायरेक्ट जो है उन पर साबित नहीं हो सकी, ना इस तरह का कोई मामला है। जबकि शहबाज शरीफ भी मुतअद्दिद बार अदालत के रूबरू ये गोश गुजार कर चुके हुए हैं कि उन्होंने किसी किस्म की करप्शन नहीं की। अगर उन पर अगर किसी किस्म की एक देले की भी करप्शन साबित हो जाए तो वो हर तरह की सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। इसके अलावा शहबाज शरीफ मुख्तलिफ मौक़ों पर आज खुद भी जो है वो दलाइल देते हैं और अपने 10 साल दौरे हुकूमत में जितने भी उन्होंने मुआहदे किए उस मुआहदों की रोशनी में निगोशिएशन के बायस जितने जो है उन्होंने कौम का सरमाया बचाया, उस हवाले से भी वो दलाइल देते हैं कि किस तरह उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों के साथ मुआहदों के दौरान निगोशिएशन करके कौम का पैसा जो है वो बचाया। इसके अलावा वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के हवाले से भी अदालत को आगाह करते हैं कि किस तरह उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी अदालत को आगाह करते हैं। इब्राहिम, इहाते में कौन कौन से लीगी रहनुमा मौजूद हैं जो साबिक़ वज़ीर आला से मुलाकात कर रहे हैं? तक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब अदालत में आ चुकी हुई हैं, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अता तारर उस्मा जाहिद बुखारी जो कि पंजाब की स्पोक्स पर्सन है वो भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। जबकि रुकन सूबाई असम्बली सैफुल्लाह खोखर समेत दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अदालत में आ चुके हुए हैं और इस वक्त वो कमरा अदालत में मौजूद है और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ से इज़हार यकजहती कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चूँकि सेनेट का इलेक्शन जो है ना वो बहुत करीब तर जो है ना वो आता जा रहा है और अदालत में समाअत भी है, लिहाजा इस हवाले से भी डिस्कशन का इम्कान है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को अब तक की जो मौजूदा सूरत है उसके बारे में अपडेट करेंगे। जबकि गुज़श्ता रोज़ 2018 के KPK में सेनेट के इलेक्शन में खरीद फरोख्त के हवाले से जो वीडियो रिलीज़ हुई है उसके हवाले से भी शहबाज शरीफ को आगाह किया जाएगा कि किन किन जो है ना तहरीक इंसाफ के अरकान ने 2018 में भारी रकूम ली और उनके ज़मीर खरीदे गए, उनके वोट खरीदे गए ताकि ख़ास जो है वो अरकान ख़ास लोगों को सेनेट का रुकन मुंतखब जो है वो कराया जा सके। इसके हवाले से भी जो है शहबाज शरीफ को अपडेट किया जाएगा कि कल की सूरत क्या है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सेनेट के उम्मीदवार हैं उनके हवाले से भी तबादला ख्याल होगा कि पाकिस्तान ठीक है, सेनेट उम्मीदवारों के हवाले से भी तबादला ख्याल होगा। इब्राहिम।